good morning to all. Students, those who are not joining today in the school, they also concentrate in this video today because what things are required in the school now these days for your assessments. That's number first, school diary. So it is must to bring a school diary if you are coming in the school for providing notice and circular by the school and teachers. Second, all study materials, time schedule wise, whatever chapters, whatever subjects are going on during the day classes, physical classes in the schools. So this is mandatory to bring that test books, required books and your subjects copy and home assignments with complete mode, because if CBSE boards provided the policy or schemes how assessment will be go on in further future, that may be 50% examination by the student and 50% marks internal assessment. So if divided 50-50, your all materials concluded in 50% marks. It means if total marks is 100, so 50% marks will be assigned by the teacher according to your study materials. If you are not completed each and everything, you can't get a single marks by the teachers, because each and every marks in internal assessments required evidence. Suppose if you are completed 50% all the copies, homework copies, and you are also completed 50% home assignments, holiday home assignments, it means you will get only 50% of 50 marks, 25. Second, if the cases of corona increased in future and suppose school will be again closed for some days or month, after that your physical examination will be held. The school also devised many plans about your examination. It means school totally wanted physical examination in the school from 9 to 12. इसको हिंदी में समझ लीजिए, किसी भी कीमत पर सनशाइन स्कूल चाहता है कि क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट का जो भी एग्जामिनेशन होगा वो कहाँ होगा, स्कूल में होगा। कॉपी पे आप लिखेंगे, उसकी सीट बनेगी, आप जो है जैसे एग्जामिनेशन देते आए हैं वैसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा। टाइम अगर कम है, सीबीएसई बोलता है 50% एक्सटर्नल और 50% इंटरनल कर लीजिए, तो 50 मार्क्स आपके इन्हीं नोट्स, कॉपी, होम असाइनमेंट्स, मैथ एक्सपर्ट्स या प्रैक्टिकल बुक या लैब मैनुअल जो भी है सबको कंक्लूड करके ही मिलेगा। इज इट क्लियर? क्लास वर्क और होमवर्क देखा जाएगा। इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर स्टडी मटेरियल्स इंक्लूडिंग स्कूल डायरी आल्सो, मार्क्स विल बी डिक्रीज। सारी रिपोर्ट बनेगी जैसे पहले बनती थी। If you want to come to school, so you must come in school uniform, day-wise school uniform. Some day house dress, 1 or 2 days track suits, other days pant and shirts. स्कूल यूनिफॉर्म में ही आपको स्कूल आना है। इसकी छूट बहुत दिन तक नहीं मिलने वाली है। तो जो भी वीडियो देखेंगे, जो आज नहीं आए हैं वो, और जो लोग आए हैं सब लोग सुन लें। ऑल थिंग्स, ऑल रूल्स ऑफ सनशाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड, और सब आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल स्टडी मटेरियल पे ही मार्क्स होते हैं। आपका बिहेवियर, स्कूल ड्रेस, तो क्लास वर्क, होमवर्क जैसे भी है सारा असेसमेंट वैसे ही होगा। और ये बिल्कुल आप विश्वास में रहिए कि आपका एग्जामिनेशन रिटन मोड में ही होगा। अगर कोरोना के केस बढ़ जाते हैं, स्कूल बंद हो जाता है, जब स्कूल ओपन होगा तब होगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मत मान के चलिए कि अरे अभी कोरोना चल गया तब तो हमारा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। नहीं, स्कूल रीओपन होगा तो होगा, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी, यानी कि विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन यू कांट पास योर क्लास। आपका एग्जाम होगा, कापियां जचेंगी, आपके टोटल असेसमेंट होंगे, जितने भी होमवर्क गए हैं सब देखा जाएगा, उसकी मार्किंग होगी, मार्क्स अवार्ड होंगे, उसके बाद ही आप पास होकर के 10th में जाएंगे। एकदम क्लियर मैसेज मैं दे रहा हूं आज। समझ में आ गया? किसी को कुछ भी डाउट होगा तो वो पर्सनली पूछ लेगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वाइट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन हिटलर्स राइज टू पावर। फर्स्ट वाज द कंडीशन ऑफ जर्मनी as a country on those days. After that, personality of Hitler, he was good orator, good speech provider. After that, the destruction of democracy. Destruction means this is just opposite of construction. Construction means निर्माण करना, destruction means destroy करना, नष्ट कर देना. So destruction of democracy. After getting 37% vote in Germany, Nazi party became largest party, and Hitler was invited by the President Hindenburg to taking the post of chancellorship. After that, he conspired the fire in parliament. उसने कंस्पिरेसी किया, जर्मन पार्लियामेंट में आग लगवा दिया, और जब पार्लियामेंट में आग लग गया तो उसने क्या किया, वीमर रिपब्लिक का जो आर्टिकल 48 था स्टेट इमरजेंसी का, जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यहीं से जो एक्सपायर होकर के रखा हुआ है, आर्टिकल 352 बाय द प्रेसिडेंट, तो इसका उसने जो है हेल्प लिया और फायर डिक्री, यानी पहला जो ऑर्डर किया स्टेट इमरजेंसी में कि जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई है, तो अब जो लोग ट्रीजन है, जो लोग पार्लियामेंट को जलाने वाले हो सकते हैं, या ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। इसमें सबसे पहले उसने क्या किया, कम्युनिस्ट को पकड़ा, कल बताया था मैंने। सो उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, बार्ड बाउंड्री, इलेक्ट्रिक वायर द्वारा, कटीले तारों द्वारा। आफ्टर दैट कम ऑन लास्ट पैराग्राफ, स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। सर्विलांस मीन्स केयरफुल वॉच केप्ट बाय समवन। सर्विलांस का मतलब होता है किसी के ऊपर निगरानी करना, नजर रखना, वो कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में आ जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे बात कर रहा है, सब कुछ गोपनीय तरीके से उसकी जानकारी रखना। एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी। कंट्रोल एंड ऑर्डर, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए और ऑर्डर करने के लिए, यानी जो आदेश है उसका पालन करवाने के लिए, और समाज की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। कौन सी व्यवस्था? ऑल द ऑर्डर ऑफ हिटलर, जो एज ए चांसलर हिटलर ऑर्डर कर रहा है उसको फॉलो करवाने के लिए, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए उसने फोर्स क्रिएट किया था इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। नाजी पार्टी या नाजी फॉलोअर्स जो चाहते थे, उसी तरीके से सोसाइटी को ऑर्डर फॉलो करवाने और उसको कंट्रोल करने के लिए फोर्स क्रिएट की गई। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म्स, यू कैन अंडरलाइन दिस पैराग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हियर। सो what was the uniforms of surveillance police? Green. Existing regular police in green uniform. And the SA, what is the full form of SA? Stormtroopers. And these stormtroopers fought Second World War also. ये जो stormtroopers थे, स्पेशली जो है इन्होंने जर्मनी के बाहर निकल करके युद्ध भी लड़ा था, बहुत डेंजरस युद्ध लड़ा था इन्होंने। तो स्टार ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो, सेक्रेट
state police. So what was Gestapo? Gestapo was the secret state police. The SS, the protection squad, criminal police, and the security services, SD. These short name Gestapo, SA, SS, SD. These were the code name of this kind of police, because all the police forces, all the group of forces were responsible to implement and following the ideology of Nazi party and Hitler. ये इतने ग्रुप जो पुलिस के बनाए गए थे, इनका एक कोड नेम था. इनको करना क्या था कि जर्मनी में नाजी पार्टी वालों का, हिटलर का प्रोटेक्शन भी करना था और सोसाइटी को कंट्रोल करके जो भी नाजी आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो भी करवाना था. सो इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था इनके पास. संविधान से ये ऊपर थे, इनके ऊपर कोई रूल काम नहीं करता था. That gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. नाजी स्टेट को रेपुटेशन इन्होंने ही दिया. क्या दिया? मोस्ट ड्रीडेड. ड्रीडेड मीन्स डरावना, भयानक, जिसको सुन के देख के डर लग जाए. तो मोस्ट ड्रीडेड criminal state. People could now be detained in Gestapo torture chamber. What was Gestapo? Gestapo क्या था? Secret state police. सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, गुप्त रूप से काम करती थी. कोई जान नहीं पाता था ये बंदा जो घूम रहा है ये सीक्रेट स्टेट पुलिस वाला है, गेस्टापो है कि ऐसे सामान्य नागरिक है. तो गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर, डिटेन मीन्स होता है कि एक जगह कैद करके रख देना, बिना मुकदमा चलाए, कुछ भी नहीं, इनको यहाँ सुरक्षित करके रखो. अनवांटेड लोग हैं, ठीक है. तो 52 टाइप्स के अनवांटेड जर्मनी में नाजियों ने खोजा था कि 52 टाइप्स जो है अनडिजरेबल लोग हैं, जिनको जर्मनी में रहना नहीं चाहिए. तो ऐसे लोगों को पकड़ करके डिटेन किया जाता था, बंद कर दिया जाता था. कहां पर? गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर. सीक्रेट पुलिस का टॉर्चर चैम्बर बना हुआ था, उसमें ले जाकर के लोगों को टॉर्चर किया जाता था. राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड. इसके बाद वहां टॉर्चर होते थे ये लोग. इसके बाद इनको कंसंट्रेशन कैंप में, जहां कम्युनिस्टों को रखा गया था पहली बार, वहां इनको पकड़ पकड़ के रखा जाता था. फिर डिपोर्टेड एट विल आर अरेस्टेड विदाउट एनी. डिपोर्टेड, डिपोर्टेड मीन्स कहीं से बाहर निकाल देना. तो जर्मनी से बाहर कर दिया जाता था एट विल. अगर उनकी इच्छा होती थी कि भाई हम कुछ नहीं है, हम देश छोड़ के जा रहे हैं, अपना सब प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको जाने दिया जाए, तो कुछ ऐसे लोगों को बोल दिया जाता ठीक है आप छोड़ के चले जाओ. अब कुछ लोगों को पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था. तो डिपोर्टेड एट विल आर अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर. कोई लीगल प्रोसीजर, कोई वारंट नहीं, कोई कानून नहीं, पकड़ लिया तो पकड़ लिया. The police forces acquired powers to rule with impunity. Impunity means without any punishment. If any responsible person make any fault in his or her duty, so there are many provisions of punishment also for that person. बट यहाँ पर क्या है, पुलिस चाहे जो करे, ये फोर्सेस कुछ भी करे, इनको कोई भी कानून के तरफ से कोई भी, अगर इन्होंने गलत भी किया तो कोई पनिशमेंट इनके लिए नहीं था. तो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट. रिकंस्ट्रक्शन. सो दिस वाज द these are the major factors to rise to Hitler in the power. When Hitler became leader, became dictator, so what was the activity of Hitler to make stronger Germany? जर्मनी को स्ट्रांगर करने के लिए उसने क्या क्या किया?
So that are given in the topic reconstruction, page number 59. Reconstruction is just after destruction. Reconstruction means punarnirman. Why is reconstruction? Because of First World War destruction. Germany attacked by the many countries also, and there are many destructions in Germany because of First World War. After that, because of Treaty of Versailles. During the Treaty of Versailles, Germany, the main area of measures taken by the France and some other countries, and 6 billion pound also recompensation charged upon the Germany. तो 6 बिलियन पाउंड जर्मनी को देना था. जर्मनी की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी. देयर वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन इन जर्मनी आल्सो, एंड बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट, बिकॉज ऑफ द अटैक अपॉन जर्मनी, फिजिकल डिस्ट्रक्शन आल्सो. तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंगें, रोड, ब्रिजेस डैमेज हो चुके थे, डिस्ट्रक्ट हो चुके थे. इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो गई थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह जो कंपनियां थी बंद हो चुकी थी. बिजनेस बंद हो गया था. बैंक्स दिवालिया हो गए थे. और उसके बाद जो है डिस्ट्रक्शन किसका किया था? डेमोक्रेसी का भी कर दिया था. लोकतंत्र को हटा करके डिक्टेटर बन गया था. तो स्पेशली यहां पर रिकंस्ट्रक्शन में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मन नेशन, जर्मनी को एज ए स्ट्रांग नेशन के रूप में फिर से उसने निर्मित किया. द डिस्ट्रक्शन मीन्स नष्ट करना. डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जर्मनी में था, बिकॉज ऑफ द वीमर रिपब्लिक, जो वहां का संविधान बना था, उसके अनुसार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, यानी कि जर्मनी में डेमोक्रेसी थी, इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, नष्ट कर दिया. आफ्टर दैट रिकंस्ट्रक्शन. व्हाई रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन मीन्स पुनर्निर्माण. तो रिकंस्ट्रक्शन कब होता है? जब डिस्ट्रक्शन होता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, all the European countries, including Germany also, many things were destroyed. वहां की सड़कें, युद्ध होता है तो आप देखते हैं ना, बम्बार्डमेंट होता है, तमाम चीजें नष्ट हो जाती हैं. तो एंड आल्सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, इतनी आर्थिक क्षति हुई थी जर्मनी में, इतना घाटा हुआ था, अर्थव्यवस्था पूरी एकदम खत्म हो गई थी. तो जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन किया. इट मीन्स जर्मन इकोनॉमी का और जर्मन जो चीजें थी, इंडस्ट्री का, रोड्स का, जो भी किया हो. सो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हिटलर्स राइज टू पावर कैसे हुआ. ये पॉइंट है. अगर इस पॉइंट से एक दो भी सेंटेंस या जो बुक में है, हम इनसे रिलेट करके अगर ऐसे आंसर लिखते हैं, ठीक है. हाउ हिटलर्स राइज टू पावर इन जर्मनी, व्हाट वेयर द कॉजेज और फैक्टर्स टू राइज ऑफ हिटलर्स इन पावर इन जर्मनी. इस टॉपिक से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन बनता है, चाहे सेंटेंस क्वेश्चन के कुछ भी हो, तो हमें कंसीडर यही करना, व्हाट वेयर द कंडीशन इन जर्मनी ड्यूरिंग दोज डे. उसके बाद पर्सनालिटी ऑफ हिटलर. हिटलर वाज गुड ओरेटर, पैशनेट करता था, प्रभावित करता था अपने स्पीच से. इसके बाद रिचुअल्स वगैरह भी कुछ करता था, अपील जो है पीपुल्स को करता था. वो जिस धर्म को मानते थे, जो काम करते थे, उसको अपने रैली में करवाता था. इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इन डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट कम इनटू पावर ओनली बिकॉज दैट पार्टी गेन द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स. जिस पार्टी को वोट की मेजॉरिटी मिलती है, सीट्स ज्यादा मिलती है, वही डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनाता है. बट हाउ हिटलर्स गेट सपोर्ट ओनली 37% पीपुल ऑफ जर्मनी. लार्जेस्ट पार्टी तो बना, बट 37% वोट वो पाया. व्हाट वाज द इलेक्शन प्रोसेस इन जर्मनी? दैट वाज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एंड लास्ट वीडियो में, सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को बताया हुआ है.
कि उसमें कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनती, तो हिटलर अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकता था बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ जर्मनी। तब इसके बाद उसने क्या किया, वीमर रिपब्लिक में आर्टिकल 48, कल के वीडियो में मैंने डाला है 48, वहां पर जो है इमरजेंसी, जस्ट लाइक इन इंडियन इमरजेंसी, तो इंडियन जर्मनी में इमरजेंसी उसने लगा दिया, आपातकाल, भारत में भी लगा है, तो आपातकाल उसने लगा दिया बाय द डिक्री, और एनेबलिंग एक्ट एक पास करवा दी। एनेबलिंग एक्ट मीन्स सक्षम करने का अधिकार, क्षमतावान बना दिया, किसको, चांसलर को, हिटलर को। तो ऑल द implementation of rules or law only order by the chancellor या गवर्नमेंट। तो हिटलर जो भी ऑर्डर करता था उसको डिक्री बोले हैं, बुक में है आपके डिक्री। डिक्री मीन्स ऑर्डर। तो केवल हिटलर के ऑर्डर जो भी वो बोल देता था, आदेश कर देता था, दैट वाज द लॉ इन जर्मनी। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस हिटलर बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। ये तो शॉर्ट में हो गया कि वो कैसे डिक्टेटर बना। तो उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया डेमोक्रेटिक जो रूल्स थे, जो प्रोसीजर था, उसको ब्रेक कर दिया, पार्लियामेंट को साइड कर दिया। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया, पॉपुलरिटी के लिए जर्मन नेशन को तैयार कर। डिफीट शॉक हिटलर एंड वर्साइली ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, ज्वाइंड जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड लेटर कंट्रोल्ड इट। What is the full name of German Workers' Party? It's given in your book. You have to find out. Rename it as National Socialist German Workers' Party. Attempts to capture powers but failed. Imprisoned for treason and later he released by the judges. Won 2.6% votes in Reichstag. Reichstag is the name of German Parliament. Developed Nazi ideology. Great Depression helped him to further popularize Nazism. जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसने हिटलर को बहुत पॉपुलर बना दिया। नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन 1932 एंड गेन 37% पीपुल्स वोट। आफ्टर दैट रीजन्स फॉर हिटलर्स पॉपुलरिटी, पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर क्यों पॉपुलर हुआ। He was powerful speaker or orator, promised to build a strong nation, undo Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles wars heated the Germany economy, Rhines and the region of Ruhr taken by the France with some country Lithuania, Poland, जो छोटे छोटे जर्मनी के बाउंड्रीज कंट्री थे, उन्होंने जर्मनी की जमीन को वर्साइली ट्रीटी के द्वारा जो है कैप्चर कर लिया। डीमिलिटराइजेशन हो गया था जर्मनी का। तो प्रॉमिस टू बिल्ड स्ट्रांग नेशन, अब इसने जो है अपने स्पीच में बोला कि हम जर्मनी को फिर से स्ट्रांग नेशन बनाएंगे। अनडू ट्रीटी ऑफ वर्साइली, ट्रीटी ऑफ वर्साइली में जो भी प्रोविजंस जर्मनी के अगेंस्ट में है उसको हम नहीं मानेंगे। रीस्टोर जर्मन डिग्निटी एंड एम्प्लॉयमेंट, यूज रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन। स्पेक्टिकल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन, इस डज नॉट मीन्स दिस गॉगल, चश्मा नहीं यहाँ पे आएगा। प्रदर्शन करता था, जो भी धार्मिक आयोजन करता था अपने रैलियों में, उसको बहुत बड़े पैमाने पे प्रदर्शन उसका करता था। जो भी पूजा पाठ सारी चीजें मंच पे करवाता था, तो लोग समझते थे कि भाई हमारे बीच का ये लीडर है, सब कुछ हमारा ही कर रहा है। सो स्किलफुली प्रोजेक्टेड नाजी प्रोपेगेंडा, अफवाह जिसको बोलते हैं। तो नाजी आइडियोलॉजी को उसमें खूब अफवाह फैलाया जाता था हिटलर के फेवर में। After that, destruction of democracy. What were the steps taken by the Hitler to destruct democracy? Hitler offered chancellorship by Hindenburg in 1933. 37% majority जब पाया, तो on those days the president of Germany was Hindenburg. तो उन्होंने हिटलर को कॉल किया, and chancellor, the post of chancellor in Germany just like the prime minister of India. रियल पावर वहां के चांसलर को होता है, जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को है। हे डिसमेंटल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स, मिस्टीरियस फायर इन रिस्टैग। रिस्टैग मीन्स जर्मन पार्लियामेंट, आग लगवा दिया था, पूरे पार्लियामेंट को जला दिया था।
अनाउंस फायर डिक्री सस्पेंडेड सिविक राइट्स। अनाउंस फायर डिक्री, जब जर्मन पार्लियामेंट में आग लगती है तो पहला 48 आर्टिकल 48 वीमर रिपब्लिक का इसने यूज किया, आपातकाल लगा दिया। डिक्री मीन्स ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटी। तो जहां भी डिक्री इसमें आया उसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस समय कौन थी? हिटलर था, जो भी ऑर्डर देता था। क्योंकि जब भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी होता है तो उसमें 48 जो आर्टिकल था जर्मनी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन का, सारी जो है पावर्स कहां चली जाती है? किसी के इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। उस समय कोई मंत्री नहीं रहता, कुछ नहीं, कोई सिविक राइट्स नहीं, किसी को कोई अधिकार नहीं होते। पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी 1975 में लगा हुआ ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तो 2 बार लग चुका है इंडिया में भी। उस समय किसी के पास कोई राइट्स नहीं रहता है, और विदाउट प्रोसीजर ऑफ लॉ एनीबॉडी कैन अरेस्टेड बाय द फोर्सेस। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं बोलने दिया जाएगा। अगर सरकार को शक हो गया कि आप गलत करने जा रहे हो तो आपको पहले ही बंदी बना लेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। तो इसको मौका मिल गया, पार्लियामेंट में आग लग गई तो बहुत बड़ी घटना हो गई, तो इसने ऑर्डर करना शुरू किया। कम्युनिस्ट सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, कम्युनिस्ट पार्टी वेयर डिटेल। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, दे वांटेड टू गवर्नमेंट जस्ट लाइक इन यूएसएसआर। सेकेंड चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बाय द लेनिन रसिया में बनी थी। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के फॉलोअर चाहते थे कि जर्मनी में भी रसिया वाली ही गवर्नमेंट बने, इसलिए पहले इन लोगों को ही पकड़ लिया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, डिटेन कर दिया। वायर तार लगा करके, इलेक्ट्रिक जो कटीले तार होते हैं, देखते हैं ना, घेरा होता है बाड़ा, उसमें जो है इलेक्ट्रिक जो है करंट दे करके और उसके अंदर इन लोगों को बंद कर दिया। सो पास इनेबलिंग एक्ट एंड इस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप। इनेबलिंग एक्ट, सारे जो रूल्स रेगुलेशन वीमर रिपब्लिक के थे वो सब कुछ जर्मन चांसलर हिटलर को एबल कर दिया। यू कैन डू एनीथिंग, जो आप ऑर्डर करोगे वही यहाँ काम, वही रूल होगा। तो डेमोक्रेसी को और वीमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों को साइड लाइन लगा दिया, पार्लियामेंट को पहले ही लगा चुका था। सो यस से गेस्टापो, एसडी, एसएस controlled and order society as per Nazi ideology. These are the short form. What does it mean by SA? It's given in your book. अब you will find from your textbook. जो टॉपिक चल रहा है Hitler's rise to power, इसी में है। Note down. SA, Gestapo, SA, Gestapo as homework, SA, Gestapo, SD, SS. These are the forces of Hitler, or these forces' responsibility was to increase the ideology and making the Nazi ideology popular in Germany. टोटल ये जर्मनी में नाजी आइडियोलॉजी को पॉपुलर करने के लिए और हिटलर के फेवर में, नाजी पार्टी के फेवर में ये ग्रुप्स काम करते थे। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पुलिस फोर्स टाइप के ये है, मैं क्लू दे रहा हूं, बुक पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। आफ्टर दैट रिकंस्ट्रक्शन, हेजमर सैसेट असाइंड इकोनॉमिक रिकवरी, ही अपॉइंटेड हेजलमर सैसेट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economic labor section. He was the finance minister who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. State-funded work creation program for the reconstruction and for the employment. राज्य द्वारा पोषित क्रिएशन प्रोग्राम, कुछ योजनाएं राज्य ने ऐसा बनाया जिसको फंड जो है गवर्नमेंट ही करेगी, यानी सारा पैसा सरकार देगी, काम होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क होंगे जिसमें जो लोग काम करेंगे उनको मजदूरी भी दिया जाएगा और काम भी हो जाएगा। कोई भी रोड्स वगैरह
बनते हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, कैनाल्स बनती है, तो आप देखते हैं ना इम्प्लाई वहां पे मजदूर काम करते हैं, सरकार बनवाती है। तो एक तो इसका जो है पब्लिक फैसिलिटी बन जाता है, रोड बन गया, इलेक्ट्रिक वायर लग गए, सब काम। तो इसमें रिकंस्ट्रक्शन वर्क जब भी गवर्नमेंट करवाती है अपने फंड से, तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, लोगों को नौकरी मिल जाती है, मजदूरी मिल जाती है। सो स्टेट फंडेड वर्क रिक्रिएशन प्रोग्राम, और ये स्टेट फंडेड रिक्रिएशन प्रोग्राम इन्वेंटेड बाय द हिटलर। जर्मनी को बढ़ाने के लिए वो बोला कि सरकार पैसा देगी, सारा काम करवाओ, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसको ठीक कराओ, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। तो इस तरीके से ये बढ़ेगा। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे। आज जो भी हाईवे आप देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन यूएसए, रसिया, चाइना, इन इंडिया आल्सो, इंडिया में भी तो हाईवे बना है, ये किसकी देन है? हिटलर की देन। तो वर्ल्ड के लिए तो वो बैडमैन था, विलेन था, लेकिन अपने देश के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया था। तो जर्मन सुपर हाईवे से ही इंस्पायर्ड होकर सारे देशों ने हाईवे बनाया। एंड द पीपुल्स कार वोक्सवैगन। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ पर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हेजलेगर को दे दिया फाइनेंस मिनिस्टर बना करके। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी में भी उसने अपॉइंट किया था। यू हैव टू रीड, इसको आप रीड कर लेंगे।